Hello, students of class 12th. Now this is time for your chemistry class. तो आज के क्लास में हम तुम लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी चल रही है, जिसमें हम अब 17 ग्रुप पे पहुँचे हैं। तो 17 ग्रुप में आज हम हैलोजन्स के बारे में तुम लोगों को बता चुके हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बता चुके हैं, और पिछले क्लास में हमने प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन के बारे में डिस्कस किया था तुम लोगों से। आज हम क्लोरीन के यानी हेलोजेंस में जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, क्लोरीन का कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और साथ में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो इन पे आज हम क्लास में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेलोजेंस चैप्टर में। क्लोरीन के और हेलोजेंस के कंपाउंड इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो आज का क्लास है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और इंटर हेलोजन कंपाउंड के बारे में। Now today's topic of the class is P block elements, HCl and interhalogen compounds. तो हम पहले हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्लाबर प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन 1648 heating common salt with concentrated sulfuric acid. Davy in 1810 proved that it is a compound of hydrogen and chlorine. Now the preparation of hydrogen chloride is very simple. In laboratory as well as on large scale, hydrogen chloride is prepared by heating sodium chloride and concentrated sulfuric acid. The reaction occurs in two stages at different temperature. In the first stage, the reaction occurs at 420 Kelvin when sodium bisulfite is formed with evolution of hydrogen chloride. NaCl reacts with sulfuric acid. At 420 Kelvin, it forms hydrogen sulfide and sodium hydrogen sulfate and hydrogen chloride. Sodium hydrogen sulfate being insoluble gets deposited on NaCl and prevents the further reaction. In the second stage, the reaction mixture is heated at 823 Kelvin when sodium hydrogen sulfate reacts with NaCl and forms sodium sulfate and HCl. NaCl reacts with sodium hydrogen sulfate at 823 Kelvin. It converted into sodium sulfate and HCl. Now laboratory method. In the laboratory, the HCl gas is prepared by the action of concentrated sulfuric acid on sodium chloride, that is common salt. रिएक्शन इस तरह से होगा, NaCl H2SO4 से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl बनता है, और फिर ये इस HCl NaCl सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी NaCl से रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट और HCl बनता है। तो ओवरऑल रिएक्शन सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl. In a round bottom flask, small quantity of sodium chloride is taken. यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड यहाँ बॉटम में लिया गया इस तरह से। NaCl H2SO4 इन दोनों को हीट करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। इसमें यहाँ पे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें जाती है और यहाँ से ये फिर इसको यहाँ से ये पास होती है
इस चैम्बर में यानी रिसेप्टर में जहाँ पे HCl गैस कलेक्ट कर ली जाती है। तो ये डायग्राम होता है लेबोरेटरी प्रेपरेशन का, डायग्राम है, इसे स्केच कर सकते हो। However, HCl is conveniently prepared by heating ammonium chloride with concentrate H2SO4। कॉमन सॉल्ट की जगह हम अमोनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। फ्लास्क में ले लेंगे अमोनियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड हीट करेंगे तो अमोनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगी। In this case, reaction does not stop at the halfway stage as ammonium hydrogen sulfate is soluble. Ammonium chloride is preferred even though it is costlier than NaCl. Large quantity of hydrogen chloride are obtained these days as byproduct from the heavy organic industry. For example, in the conversion of 1,2-dichloroethane into vinyl chloride HCl is obtained. 1,2-dichloroethane हीट करते हैं तो ये विनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, हमें लार्ज स्केल में HCl गैस मिलती है। Now properties of HCl. Hydrogen chloride is a colorless and pungent smelling gas. It is easily liquefied to a colorless liquid and freezes to a white crystalline solid. It is highly soluble in water and ionized as follows. HCl को डिजोल्व करते हैं तो ये H3O प्लस और Cl क्लोराइड आयन में आयनाइज हो जाता है। इसके लिए जो रिएक्शन कांस्टेंट होता है वो K10⁻⁷। Its aqueous solution is called hydrochloric acid. High value of its ionization constant indicate that it is a strong acid in water. So this is the important point. Its aqueous solution, meaning hydrogen chloride's aqueous solution is called hydrochloric acid. High value of its ionization constant indicate that it is a strong acid in water. This is the ionization constant. It reacts with ammonia and gives white fumes of ammonium chloride. जब प्रैक्टिकल करते हो तुम लोग उसमें NH3 और HCl का रिएक्शन देखते हो, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम के टेस्ट में अमोनियम क्लोराइड की बनती है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है HCl, तो कॉमन सॉल्ट बनता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होता है तो NaCl H2O CO2। सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन HCl का होता है तो NaCl। इन तीनों पोजिशन में कॉमन सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। When three part of, this is the important topic, aquaresia. What is the aquaresia? When 3 part of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, aquaresia is formed. Aquaresia is used for dissolving noble metals like gold and platinum. तो 1 part HCl and 3 part 3 HCl, तो ये इस तरह का मिक्सचर बनता है। इनो रिएक्शन इसके बीच होता है तो नाइट्रोसिल क्लोराइड H2O और नेसेंट क्लोरीन बनती है, और ये नेसेंट क्लोरीन गोल्ड से रिएक्शन करके आरिल क्लोराइड बनाता है, और HCl इस तरह से रिएक्शन करके HAuCl4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से हो जाता है, गोल्ड प्लस 3HNO3 प्लस 11HCl, ये का बैलेंस रिएक्शन है। तो ये टेट्राक्लोरो आरिक एसिड बनता है, साथ में नाइट्रोसिल क्लोराइड और वाटर। Now use of hydrochloric acid. It is used in the preparation of chlorine, chlorides, aquaresia, ammonium chloride and glucose. It is also used as a laboratory reagent and used for cleaning iron sheets during tin plating and galvanization. It is used for extraction of glue from animal tissues and bones. It's used in medicine, it's used in the manufacture of dye, stuff and sugar industry. Now most important part of the halogens is the interhalogen compounds.
The halogens, on account of difference in their electronegativities, combine with each other and form binary covalent compounds of A, B, N type, which are called interhalogen compounds. हेलोजेंस में जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है, ये इनकी जनरल स्टडी में पढ़ चुके हो। तो अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये आपस में ही जुड़ करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो कहलाते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। टाइप ए, बी, एन होता है। A is always the bigger atom and B is smaller atom, and N may have values 1, 2, 3 and 7 corresponding to oxidation state of halogen. The value of N increase with increase of atomic number. These compounds are of 4 type. AB type, तो ClF, ये सारे हेलोजन ही हैं जो आपस में जुड़ करके कंपाउंड बना रहे हैं। AB टाइप जैसे ClF कंपाउंड, BrF, BrCl, ICl, IBr। AB3 टाइप कंपाउंड होते हैं ClF3, BrF3, ICl3। AB5 टाइप होते हैं BrF5, IF5। AB7 टाइप IF7, यानी आयोडीन और फ्लोरीन का कंपाउंड। All the interhalogen compounds except IF7 can be prepared by direct combination of the halogens under appropriate condition. क्लोरीन, फ्रोमीन को इक्वल वैल्यूम्स में लेकर 523 केल्विन पर हीट करेंगे तो हमें ClF कंपाउंड मिलेगा, यानी AB टाइप। इसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन मिक्सर में लेंगे तो हम ClF3 उतने ही टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ClF3 यानी AB3 टाइप कंपाउंड बनेगा। हायर इंटरहैलोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग लोअर इंटरहैलोजन विद हैलोजन। अब BrF3 फ्लोरीन से के साथ हीट करेंगे 473 केल्विन पे तो Br5 बनेगा, यानी AB5 टाइप कंपाउंड। अब IF5 को फ्लोरीन के साथ हीट करेंगे तो IF7 बनेगा। इसी तरह CIF को फ्लोरीन से हम हीट करेंगे तो ClF3 कंपाउंड यानी AB3 टाइप कंपाउंड बनेगा। Now general properties of interhalogen compounds. First है physical state. Interhalogen compounds may be gases ClF, BrF, ClF3, IF7, liquids, ये सारे क्या हैं, गैसेस हैं। उसके बाद लिक्विड्स में BrF3, BrF5, IF5 एंड सॉलिड ICl, IBr, IF3 एंड ICl3। तो 3 तरह की फिजिकल स्टेट में इंटरहैलोजन कंपाउंड्स मिलते हैं। गैसेस, these are the gases, फिर लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। कलर, many of the interhalogen compounds containing fluorine are colorless. However, those made of heavier halogens are colored. The color becomes deeper with increase of molecular mass of the compound. Third point is diamagnetic nature. All the electrons bonding or non-bonding are present in pairs. The interhalogen molecules are diatomic in nature. हेलो हेलो, हाँ नमस्ते। अरे हम यहाँ ऊपर है 32 नंबर में। तो उनको जाने दीजिए, नहीं ना भेजिए, हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन। कह दीजिए आज आई नहीं ना, कह दीजिए 12:30 बजे आएंगे। नमस्ते। अच्छा अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, हम 12:30 बजे खाली होंगे। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। डायमैग्नेटिक नेचर हो गया, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेयर, द इंटरहैलोजन मॉलिक्यूल्स आर डायटोमिक इन नेचर। Now thermal stability. Thermal stability of AB type compounds increase with increase in electronegativity.
difference between A and B, more polar is the AB bond, greater is the thermal stability. Thermal stability इस तरह से डिक्रीज करती जा रही है यहाँ पे। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इन दोनों कंपाउंड्स के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, यानी आयोडीन और फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.5 है, PRF के बीच 1.2 है, फिर 1, इस तरह से ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है कंपाउंड्स में। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ए बी टाइप कंपाउंड इंक्रीज with increase in electronegativity difference between A and B. And more polar is AB bond greater in thermal stability. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे कम होता जा रहा है, तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है विद डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। Now reactivity, AB type compounds are more reactive than A2, B2 molecules since AB bond is weaker than AA bond and BB bonds. The order of reactivity of some interhalogen compounds has been found as CF3 more reactive than BRF5 and this is more reactive than this. तो reactivity जो है ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई हुई है। द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन द हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के मुकाबले में इंटर हेलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नाउ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस गिव्स हेलोजन एसिड्स एंड ऑक्सीहेलोजन एसिड. The oxyhalogen acid is of larger halogen. हाइड्रोलिसिस ए बी टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है तो इस तरह का कंपाउंड बनता है। ये भी ए बी टाइप है H2O से, तो HIO प्लस HCl, यानी इसका एग्जाम्पल है, ये जनरल रिएक्शन है और ये इसका एग्जाम्पल है। ICl3 यानी AB3 की हाइड्रोलिसिस होती है तो IO3 प्लस 3HCl बनता है। AB5 कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ तो HBrO3 प्लस 5HF बन रहा है। और IF7 यानी AB7 टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है तो H5IO6 प्लस 7HF बनता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए एटम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। तो जो ए कंपाउंड जो पहला वाला होता है ये ए है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ यस यानी वेस्पर थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ए बी टाइप, in these molecules the bigger atom undergoes sp3 hybridization, यानी ए जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जाता है। जो हेलोजेंस हैं उनके लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होता है NH2 NP5, तो इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ए बी टाइप में, ए जो एटम है उसमें। और अब इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी तीन जो ऑर्बिटल हैं sp3 उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है दूसरे कम जो एटम होते हैं उनके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये तीन जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो b के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। 3 hybrid orbital contains 1 lone pair of electrons each, while the 4th hybrid orbital contains 1 electron. This orbital make a head-to-head overlap with the atom, जो भी बताया, atom forming a sigma bond. Thus, the shape of AB molecule is linear. तो इस तरह से इसका शेप जो मॉलिक्यूल्स का होगा ए बी का वो लिनियर होगा। नाउ AB3 टाइप, द सेंट्रल एटम
A undergoes sp3 dehybridization, trigonal bipyramid structure come into structure. किस तरह से sp3, ये d ऑर्बिटल भी होता है हेलोजन में फ्लोरीन के अलावा, तो जब Cl Br कोई भी होगा तो यहाँ का एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में d ऑर्बिटल में चला जाता है, और तब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। दो एक s और दो एक p ऑर्बिटल के पास लैंड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी के तीन जो ये तुम्हारे ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है जो b मॉलिक्यूल्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से ये AB3 टाइप कंपाउंड बनेगा। Out of 5 hybrid orbitals, 2 equatorial contain lone pair of electron, ये बताया। Each, while the remaining 3 contains 1 electron each. The single occupied hybrid orbitals overlap with singly filled p orbital on 3 b atoms forming 3 sigma bond। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले ये 2 ऑर्बिटल है और बाकी के ये बी के साथ इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक बी का, यहाँ पे भी एक ए का एक बी का शेयर करके 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल AB3 इज स्लाइटली बेंट टी शेप विद बॉन्ड एंगल इक्वल टू 87.5 डिग्री इन ClF3। ClF3 इस तरह की स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होगा। नाउ AB5 टाइप, द सेंट्रल A एटम अंडरगोज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ दोनों p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के d ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये 5 ऑर्बिटल इस तरह से 2 1 और 3 और 2 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर के sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं जो 5 b मॉलिक्यूल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। Octahedral configuration comes into existence in this case. One hybrid orbital contains a lone pair of electron. s ऑर्बिटल जो है इसके पास सिर्फ lone pair of electron है, बाकी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। While the remaining 5 have 1 electron each, these singly occupied orbitals overlap with 5 b atoms, forming 5 sigma bonds. B atom utilize their singly occupied p orbital. The shape of the molecule AB5 type is square pyramidal. Example इसका BrF5। स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, A इसको Br ले लो और F है, B जो है इस तरह से एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बाकी सारे B ऑर्बिटल्स के B मॉलिक्यूल्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन S के पास मौजूद है। Now AB7 type, the central A atom undergoes here sp3d3 hybridization. S इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे आ गया d ऑर्बिटल में, तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा सब मिला के sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है IF7। I का जो एटम है I यानी A, ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। अब ये सातों जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिटल के साथ, ये फ्लोरीन के ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं यानी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल कॉन्फ़िगरेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। Each of the 7 hybrid orbital is singly filled. Each of these hybrid orbitals overlap with singly filled p orbital of p atom, forming 7 sigma bonds. Thus, the molecule AB7 has a pentagonal bipyramidal shape. इस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा I और ये F
बी मॉलिक्यूल F7, यानी सभी 7 इलेक्ट्रॉन इसके 7 ऑर्बिटल बी के p ऑर्बिटल से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस यानी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। तो ये देखा तुम लोगों ने कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ये कितना इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग था। बस आज का यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद हम अगले क्लास में तुम लोगों को इनर्ट गैसेस